یہاں آپ کو بتائیں، ہیلمٹ نہیں پیٹرول نہیں، بغیر تیاری نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں ضلعی انتظامیہ نے اعلان تو کر دیا لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے برابر۔ پیٹرول پمپس پر اب بھی ہیلمٹ پہنے بغیر شہری پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ تفصیلات جانیے علی رضا کی رپورٹ میں۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے بغیر تیاری نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا مگر پیٹرول پمپس پر عمل درآمد ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ پیٹرول پمپس پر ابھی بھی ہیلمٹ پہنے بغیر شہری پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ پمپ مالکان کہتے ہیں ہمیں بغیر ہیلمٹ پیٹرول نہ دینے کا کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا ہے بھائی، کہہ رہے ہیں پیٹرول کے نام ہیلمٹ ڈلوانا ہے تو صحیح ہے، پھر پیٹرول ملنا ہے بھائی۔ یہ کسی نے ہیلمٹ نہیں ڈالا پھر بھی ہم ڈال رہے ہیں، ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں کچھ۔ سر ہمیں کسی نے یہ اناؤنس کیا ہی نہیں ہے کہ ہیلمٹ والے کو دیں، ہیلمٹ کے بغیر نہ دیں۔ شہری کہتے ہیں راتوں رات پابندی لگانے کی بجائے انتظامیہ ہیلمٹ کی افادیت بارے آگاہی فراہم کرے۔ یہ اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے عوام کو دی گئی ابھی تک۔ بہت سارے لوگوں کو، میرا خیال ہے 70% پلس لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے یہاں پہ کہ ہیلمٹ پہن کے ہم فیول لے سکتے ہیں، ویسے نہیں لے سکتے۔ ہیلمٹ سے انسان بچتا ہے، کافی نقصان سے انسان بچ سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ سے بھی بچ سکتا ہے۔ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی کے باعث احکامات کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ساتھی رپورٹر فصیح نقوی اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں بھی ہیلمٹ پہننے کی پابندی کے احکامات ہوا ہو گئے۔ پیٹرول پمپس پر ہیلمٹ کے بغیر تیل دستیاب، اہم شاہراہوں پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں۔ حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع کی روک تھام کے لیے ہیلمٹ پہننے کی پابندی لازم قرار۔ جنگ میں بھی ہیلمٹ پہننے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ موٹر سائیکل سواروں کے مطابق ہیلمٹ کی پابندی اچھی بات ہے مگر انتظامیہ کارروائیوں سے پہلے ہیلمٹ کی قیمتوں کو کنٹرول اور شہریوں کے لیے آگاہی مہم چلائیں۔ ڈی سی او اور ڈی پی او صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، اگر آگاہی مہم چلائی ہے پھر ہم نے نہیں ڈالا پھر ہم مجرم ہیں۔ اب ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم گزر رہے ہیں جی ہیلمٹ ڈالیں، ہماری جیب میں 500 روپے ہے، 1300 کا ہیلمٹ ہے، ہم 500 روپے جرمانہ بھریں یا 1300 کا ہیلمٹ لیں۔ جنگ کی اہم ترین شاہراہوں پر بھی ہیلمٹ پہننے کی پابندی کی خلاف ورزی جاری۔ پمپس پر بھی موٹر سائیکل سواروں کو بغیر روک ٹوک پیٹرول مل رہا ہے۔ پمپ مالکان نے شہریوں سے ہیلمٹ پہننے کی استدعا کر دی۔ میں شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سر پہ اپنا ہیلمٹ پہن کے آئیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہیلمٹ کے بغیر وہ موٹر سائیکل پہ کہیں بھی آئے جائیں گے، خدا نہ خواستہ گرنے کی شکل میں ان کو کوئی ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، زندگی ان کی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ٹریفک حادثات میں 60% اموات موٹر سائیکل سواروں کی ہوتی ہیں جس کی بنیادی وجہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اور ناظرین، موٹر سائیکل چلانا ہے تو ہیلمٹ پہننا پڑے گا۔ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضروری قرار۔ ٹریفک پولیس ٹوبہ نے جگہ جگہ ناکے لگا لیے۔ ایک دن میں 500 شہریوں کو جرمانہ، آگاہی مہم بھی تیز کر دی۔ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ بھی ہوگا۔ ٹریفک پولیس ٹوبہ نے جگہ جگہ ناکے لگا لیے۔ 2 دن میں 500 سے زائد شہریوں کو جرمانہ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے آگاہی مہم بھی تیز کر دی۔ کہتے ہیں شہری بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل پر سوار نہ ہوں۔ ہم لوگ ہیلمٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور انفورسمنٹ ہو رہی ہے، پلس ان کو بریف بھی کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے ہیلمٹ، کیونکہ ہم شادی میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہیڈ انجری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے سی ایم پنجاب صاحب نے کہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر یہ بریف بھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بریف کریں اور اس بارے میں انفورسمنٹ بھی کریں کہ لوگ ہیلمٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک حادثات میں بڑی تعداد موٹر سائیکل سواروں کی ہوتی ہے جو سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہیلمٹ کے استعمال سے شہری محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شہریوں نے بھی ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سر تو بندہ بچ جاتا، من تو بندہ بچ جاتا، یہ ہر بندے لینا چاہیے۔ ہر بندہ بدماشی کرتا نہیں ہیلمٹ لینا، ڈرائیور کو سمجھنا گڈی کول بھی آ کے بچ جاتا وا، یہ ہونا چاہیے جناب۔ ٹریفک اور پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے ہیلمٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے اور شہریوں سے بھی ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میں ہیلمٹ کی پابندی پر فیول مل رہا ہے یا نہیں؟ خواتین ہیلمٹ کی پابندی کرانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیا فیصل آباد میں ہیلمٹ کی پابندی نافذ ہو رہی ہے؟ پیٹرول پمپ مالکان ہیلمٹ کی پابندی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ہیلمٹ پر لگائی گئی پابندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور فیول مل رہا ہے یا نہیں، اور خواتین اس میں کیسے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں تو انہیں بہت کہتی ہوں کہ ہیلمٹ پہنا کر، یہ پہنتے نہیں ہیں۔ میں آج موسم بہت اچھا تھا، بچوں کو لے کر لانگ ڈرائیو پر نکلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلو میرے بال نہ خراب ہو جائے، دیکھو میں نے بال ٹرائی کرائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میرا حلیہ ویسا نہ ہو جائے جیسے پہلے ہوتا ہے۔ میں نے ہیلمٹ اس لیے ڈالا تاکہ مجھے فیول ملے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت کہا تھا کہ ہیلمٹ پہنے تو انہوں نے نہیں پہنا۔
पहनते हैं, लेकिन आज इसलिए नहीं पहना गया कि हम घर भूल आए हैं। पहनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पहनना चाहिए, सेफ्टी है इंसान की, लेकिन वो घर भूल आए इस वजह से नहीं पहना गया। मेरे मियां ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਰ ਹੈਲਮਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਲਮਟ नहीं पहनता। फ्यूल मुझे मिला है, लेकिन मैंने हेलमेट इसलिए नहीं पहना कि मैंने कटिंग करवाई है, फैशन मेरा ख़राब होता है, तो बकाया मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा हेलमेट ज़रूर पहनूंगा। जो वार्डन वाले बाहर खड़े हैं, वार्डन वाले बाहर से चलान करें, जो मर्जी करें, या उनको हेलमेट दें। हमारे पास वो जो बंदा आए उनके पास से गुजर के आ रहा है, जो उसे करते हैं, तो हम तो उनको पेट्रोल देना, हमारा तो कारोबार है, हर पंपों का हमने उसके साथ बंद तो नहीं करने। हेलमेट आपका मुहाफिज है। हेलमेट पर लगाई गई पाबंदी पे ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी अपना अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लाकर सिटी 41 फैसलाबाद। किसने किस तरफ जाना है, कैसे पता चलेगा, कब रुकना है, कब चलना है, शहरी कश्मकश का शिकार। फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराहों पर लगे सिग्नल्स खराब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, बेहंगम चलती गाड़ियां हादसात का बाइस बनने लगी। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। किसने किस तरफ जाना है, शहरी कश्मकश का शिकार, कब रुकना है, कब चलना है, समझना मुश्किल होने लगा। फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें मामूल बन गईं। अक्सर यहाँ से गुजर होता है, ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं अक्सर कभी सिग्नल बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सिग्नल चलते ही नहीं है, ठीक है, सिग्नल बंद है, अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, सिग्नल भी बंद है। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी जब हम आते हैं, ठीक है, तो इधर से भी ट्रैफिक आ रही होती है, उधर से भी आ रही होती है, और काफ़ी ज़्यादा जो हादसात की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जामिया चिश्तिया चौक में खंबे मौजूद, लेकिन सिग्नल गायब। डी ग्राउंड में ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए मगर फाल ना हो सके। गुलाम अहमदाबाद सदर बाजार में मौजूद ट्रैफिक सिग्नल्स की बदतर सूरत हाल है। जंग रोड में भी सिग्नल खराब, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं, बेहंगम चलती गाड़ियां हादसात को दावत देने लगी। 3-4 जगह ऐसी हैं मेन शाहराएं जिधर सिग्नल नहीं है, इधर भी तकरीबन 2 माह से सिग्नल नहीं है। रोज दिन और रात हो कोई ना कोई हादसा लाजमी पेश आता है। ट्रैफिक सिग्नल खराब होने से अहम शहराओं पर हादसात में इजाफा होने लगा। सीडीओ को चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स फौरी ठीक कराएं और एहलकारों की तादाद बढ़ाने के लिए फौरी इकदाम करें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की बड़ी नाकामी, ट्रैफिक सिग्नल्स की अबतर सूरत हाल। शहर भर की अहम शाहराहों पर 26 सिग्नल्स गैर फ़ाल, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो से मसाइल बढ़ने लगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने की वजह से मसाइल में इजाफा होने लगा। मजमूई तौर पर 26 ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, जिसके बायस जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। चीफ ऑफिसर ने मलबा एहतजाजी मुजाहरों पर डाल दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर वट्टू कहते हैं, खराबी का इल्म है, इंजीनियरिंग ब्रांच को जिम्मेदारी तफवीज कर दी है, जल्द बहाली के लिए कोशिश हैं। कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स को डैमेज किया गया, इसके अलावा कुछ कंट्रोलर हैं वो अब चोरी हुए। तो ये छः के करीब हैं ट्रैफिक सिग्नल इस तरह के। इनको जो है ना हम रिपेयर करने के लिए हमने एक टेंडर जो है ना दे दिया है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी हम जो है ना रिपेयर कर देंगे। इनको प्रॉपरली चेक करने के लिए एक सब इंजीनियर की हमने ड्यूटी लगाई हुई है, हमारी टीमें देखती रहती हैं। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लून का गैर फाल सिग्नल्स के हवाले से कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ राब्ते में हैं, 1 हफ्ते में तमाम सिग्नल्स फाल करा दिए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि लाहौर की तर्ज पर सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर चेक भी किया जाता है और जहाँ खराबी आती है उसको हम जो है ना फौरी रिपेयर करते हैं। और ये जो अभी डैमेज हुए हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि जिसकी वजह से हमें जो है ना ये टेंडर फ्लोट करना पड़ा, और वो हम इंशाल्लाह अगले 10 दिन में 15 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। कॉरपोरेशन हुक्काम तवज्जो मरकूज करें तो ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो सकता है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर का दौरा फैसलाबाद। SM तनवीर वासा हेड ऑफिस वासा डिस्पोजल गए। हुकाम को नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हमरा एक्सेल लोड मैनेजमेंट इजलास की सदारत की। निगरान सूबाई वजीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की फैसलाबाद आमद। SM तनवीर ने कमिश्नर सिलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली नान कमर के हमरा वासा हेड ऑफिस का दौरा किया और कंट्रोल रूम का जायजा लिया। MD वासा इंजीनियर खालिद रजा खान ने मॉनसून के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी। SM तनवीर ने वासा हुक्काम को निशेबी इलाकों से तरजीही बुनियादों पर नकासी आब की हिदायत की। प्रॉपर इसकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए कि ऐसे ना हो कि खुदा ना खास्ता लाहौर जैसी बारिश पड़ जाए। जैसे आपको पता है वो 290 mm आ गया,
तो वो हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस पर भी इन्होंने काम शुरू कर दिया। कंप्लेन जब तक हल नहीं होती, हमारी पेंडिंग लिस्ट आती है, एमडी वासा उसको डेली चेक करते हैं और उसके बाद जब कंप्लेन विद इन 48 आवर्स हल करके हम कस्टमर को बताते हैं कि आपके मसले का हल हो गया। सूबाई वजीर ने सत्याना रोड, डिस्पोजल और समुद्री रोड पर वाक़े आरजी ड्रेनेज पॉइंट का भी दौरा किया। जिला इंतजामिया और वासा अफसरान भी मौजूद थे। एसएम तनवीर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की हमरा एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से इजलास की सदारत की। पहले मरहले में तमाम कमर्शियल, दूसरे मरहले में इंडस्ट्री में नस्ब कंडों को PITB पंजाब की एप्लीकेशन से लिंक करने का फैसला किया गया। एसएम तनवीर ने मीडिया नुमाइंदगान से एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू की। आपने इस लोड से ऊपर नहीं आना, अगर आपका लोड उससे ज़्यादा हो जाएगा फिर गवर्नमेंट चलान भी करेगी और उस पर सख्ती भी करेगी। उस हवाले से आज हमारी पहली मीटिंग हुई है हमारी फैसलाबाद में हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। इसको क्योंकि हमारे एक इदारा है PITB जिसके थ्रू हम कांटे का वज़न करेंगे और कांटे का वज़न करके ऑनलाइन वज़न होगा और हमारा एक डैशबोर्ड बन रहा है जिसमें इसको मॉनिटरिंग करेंगे कि वज़न कहाँ जा रहा है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद, डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने शिरकत की। CTO मकसूद लोन और SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल समेत सितारा ग्रुप के CEO मियां अदरीस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर की तनाजुली मगर धागे की कीमत में मुसलसल इजाफा। विस्कोस यॉर्न की कोन 2 रुपये मजीद महंगी करती गई। सनतकारों ने कीमतों में इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। डॉलर गिरने के बावजूद धागे की कीमत में मुसलसल इजाफा। विस्कोस यॉर्न की कोन 2 रुपये मजीद महंगी कर दी गई। विस्कोस की कोन 213 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं डॉलर की कीमत कम हो रही है और ऐसे में धागे की कीमतों में मजीद इजाफे का कोई जवाब नहीं बनता। मुल्की हालात की वजह से कारोबार वैसे ही बंद पड़े हुए पहले से, अब कुछ अच्छी नवीद आनी शुरू हुई है। डॉलर नीचे आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। डॉलर पिछले दिनों से देखें एक दफ़ा भी नहीं बढ़ा, मुसलसल नीचे आ रहा है और एक दिन में 10-10 रुपए 12-12 रुपए डॉलर नीचे आया। ये सोच के हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमारा रॉ मटीरियल जो है वो सस्ता रहेगा, हमारा भी कुछ कारोबार चल जाएगा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल बरामदात बेहतर हुई मगर मुनाफा बख्श न हो सकी। गुज़िश्ता माली साल के 3 माह बरामदात मुस्बत, 9 महीने खसारे में रही। 2 माह में $1.5 अरब की टेक्सटाइल बरामदात हो सकी। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात गुज़िश्ता साल की निस्बत 15% कम रिकॉर्ड की गई। साल 2022-23 में बरामदात कम होकर $16 अरब 51 मिलियन रही। जून में $1 अरब 48 मिलियन की बरामदात रिकॉर्ड। साबिक सदर चैम्बर सैयद ज़िया आलमदार कहते हैं महंगी बिजली और गैस के बाइस बरामदात में मजीद कमी होगी। जब हम मुकाबिल के बराबर कीमत नहीं देंगे तो नए ऑर्डर्स कैसे आएंगे। 2% जो एक्सपोर्ट के ऊपर देते थे वो भी नहीं दे रहे। तीसरा ये है कि हमारे जितना इनकम टैक्स और जितने भी ड्यूज थे वो भी हमें नहीं दे रहे। तो हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल जो है 5, फिर इन्होंने 17 से 18% सेल टैक्स कर दिया। अब अगर हमें 5.5 महीने सेल टैक्स ना मिले तो हमारी 100% जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सनतकार कहते हैं कारोबार नहीं चल रहा। हुकूमत इंडस्ट्री को बचाने के लिए सियासी हिकमत अमली की बजाय ताजरों की मशावरत से इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। यौम तकद्दुस पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीर फैज रसूल हैदरी रिजवी की क़यादत में रैली निकाली गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फैसलाबादी सड़कों पर निकल आए। यौम तकद्दुस पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीर फैज रसूल हैदर रिजवी की क़यादत में एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी झंग बाजार से निकाली गई। इस मौके पर पीर काजी फैज रसूल हैदर रिजवी ने कहा कि ऐसे वाकयात की सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, उम्मत मुसलमान स्वीडन का सफारती और मौशी बाइकआउट करे। उम्मत मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बैनुल मसालक के तौर पर भी इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी एक बैनुल मसालक ऑलरेडी चला रहा हूँ, इस पर इकट्ठा होकर एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और हुक्मरानों को एक्शन। ये मजम्मत से काम नहीं अब चलेगा। हम भी देख रहे हैं अरसे से मजम्मत, ये क्या लफ्ज़ है? ये तो खुद हमारा मजाक उड़ा लफ्ज़ है मजम्मत। साहिबजादा अली हैदर, नाज़िम आला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान डॉक्टर यूनुस रिजवी, जुबैर कादरी, जिला सदर तहरीक अहले सुन्नत आशिक हुसैन रिजवी रैली में शरीक हुए। नाज़िम आला आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान डॉक्टर यूनुस रिजवी ने कहा कि कुरान पाक की बेरुहमती काबिल कबूल नहीं, स्वीडन के सफीर को फौरी बेदखल किया जाए। मसनूआत को भी छोड़ना चाहिए, अपने मुल्क की मसनूआत को तरजीह देनी चाहिए। हमारी हुकूमत को अब कोई ऐसा ठोस इकदाम करना चाहिए कि अब ऐसे जो है ना हरकतें आइंदा के लिए मुस्तकिल बंद हो जाएं। रैली में फजंदान इस्लाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।
स्वीडन वाक़ये के खिलाफ फैसलाबाद में भी यौम तक़द्दुस कुरान मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कौम सरापा एहतजाज। यौम तक़द्दुस कुरान के सिलसिले में फैसलाबाद में भी एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से GTS चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कुरान की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। आने वाले वक्त के अंदर इस्लाम तेजी से यूरोप में फैलेगा, तो वो क्या कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है और वो कुछ कर नहीं पा रहे सवाए इस तरह की गंदी हरकतों की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के ज़रिए तमाम मुनक्कदा रैली की क़यादत सदर बार राना शाहिद मनीर ने की। चेयरमैन मिनारिटी अलायंस अकमल भट्टी व दीगर वकला ने शिरकत की। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर खान का कहना था कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना मगरब की बीमार सोच की अक्कासी है। गवर्नमेंट की जो सरपरस्ती के अंदर ये जो घिनौनी साजिश की जा रही है कि हमारी जो मुकद्दस किताब है कुरान पाक उसकी बेहुरमती की जा रही है, इस मसले को इंटरनेशनल सतह पर लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह और इस आवाज़ को इंटरनेशनल सतह पर उठाया जाएगा। सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। डिवीजनल सदर सुन्नी तहरीक प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने कहा, इजहार आज़ादी राय की आड़ में मजहब को निशाना बनाने वाले इंसानियत के नाम पर बदनुमा धब्बा है। अपने सफीर को अलामती तौर पर वहाँ से बुलाया जाए और यहाँ पाकिस्तान में जो स्वीडन का सफीर है अलामती तौर पर उसको भी कम से कम एक दफ़ा मुल्क से निकाला जाए। और दूसरा, हुक्मरानों को ये चाहिए कि आलमी इस्लाम को इस वक्त मुत्तहिद होना होगा, तमाम मुसलमान हुक्मरान मिलकर बैठे और इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाए। पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी रिकॉर्ड करवाया। शुरका ने कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत की। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान, जनरल सेक्रेटरी इशफाक हुसैन व दीगर शरीक हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया गया। हमेशा इनके लिए एहतजाज करते रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज जारी है और जितने तमाम मुल्क हैं तमाम को यकजा होकर इसका एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी मुल्क इस तरह की जरूरत। मुजाहिदीन ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुस्तकिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाए अमल मरतब किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। उम्रा ज़ारीन के लिए खुशखबरी, PIA के किरायों में नुमाया कमी कर दी गई। PIA ने उम्रा किरायों में 11,000 रुपये की कमी कर दी। किरायों में कमी का इतलाक 10 अगस्त तक रहेगा। तमाम किराए अमरीकी डॉलर की करेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी करना होगा। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मदीना और जद्दा के 2 तरफा किरायों में कमी कर दी गई। PIA का फैसलाबाद से मदीना और जद्दा का किराया 1,12,000 से कम होकर 1,08,000 रुपये हो गया। कौमी एयरलाइन ने मदीना और जद्दा के 2 तरफा किरायों में कमी कर दी। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा। DPO टोबा सैयद करार हुसैन का मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस रूट्स का दौरा। इमाम बारगाहों की इंतजामिया से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर जंग की ज़ेर सदारत भी इंतजामिया बारे इजलास ली। DPO टोबा सैयद करार हुसैन का मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस रूट्स का दौरा। इमाम बारगाहों के इंतजामिया से मुलाकात की। ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक और SHO फरियाद चीमा भी हमरा थे। DPO सैयद करार हुसैन ने कमालिया और पीर महल का भी दौरा किया। इस मौका पर DPO सैयद करार हुसैन का कहना है मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इमाम बारगाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, जबकि जुलूस मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला टोबा टेक्सिंग जो है यहाँ पे टोटल 334 जुलूस हैं, प्रोसेशंस हैं और 534 मजालिस होंगे यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक। और इंशाल्लाह टोबा टेक्सिंग पुलिस इन तमाम मजालिस और इन तमाम जुलूसों पे 100% सिक्योरिटी मुहैया करेगी, चाहे वो रूफ टॉप सिक्योरिटी हो, चाहे वो स्टैटिक ड्यूटी हो, चाहे वो पेट्रोलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो बॉक्स फॉर्मेशन की फॉर्म में हो। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा इजलास। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया आशूरा मुहर्रम के दौरान जंग में 1900 से ज्यादा मजालिस मुनाकिद होंगी, जबकि A, V और C कैटेगरी के 493 जुलूस भी बरामद होंगे। इजलास में मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजामात करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा जुलूसों के रास्ते पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों से प्लान तलब कर लिया। हमें शहर के मसाइल का बखूबी अंदाजा है, उसके लिए हम बखूबी तरीके से जितनी हो सकते हैं रिसोर्स एफर्ट्स करें। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इंतजामात जो हैं पहले से बेहतर हो सके और जिस हद तक हो सके पैच वर्क कंप्लीट कर सके, लाइटों का बेहतरीन इंतजाम हो, सीवेज का निजाम बिल्कुल बेहतरीन हो, क्लीननेस जो है बेहतरीन हो। आई होप कि इंशाल्लाह जितने भी हमारे अदारे हैं भरपूर तरीके से काम करेंगे और एक मिसाली तौर पर जो इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट जंग में होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद रजा, असिस्टेंट कमिश्नर और लाइसेंस दारान भी मौजूद थे। PTCL, सुई गैस, म्यूनिसिपल कमेटी, जिला काउंसिल, फेस्को, महकमा सेहत, असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान भी शरीक हुए। जंग पुलिस पर गैर पेशा वराना रवैये का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। PMA की जानिब से OPD का बायकॉट।
जंग में डॉक्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पीएमए ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी का बाइकाट करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डॉक्टर्स के एहतजाज और ओपीडी की बंदिश के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई पर्ची नहीं है। मैंने कहा वापसी मरीज ले जाएं, वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ले जाएं। तो पता नहीं है डॉक्टर इधर मरीज चेकअप करने के लिए आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। पर्ची नहीं दे रहे, कहने कोई हड़ताल है, पता नहीं क्या है। हम तो परेशान खड़े हैं, बहुत परेशान है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर से हैं, बहुत परेशान हूँ। सदर पीएमए डॉक्टर इजाज सुल्तान का कहना था कि मुबैना तौर पर पुलिस मुलजमान के एमएलसी अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने के लिए दबाव डालती है। 2 रोज कबल मुलजिम का एमएलसी पुलिस के मुताबिक न बनाने पर डॉक्टर्स को हिरासा किया गया। इनका मजीद कहना था कि पुलिस मुलजमान के गैर पेशा वाराना रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। हमारे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे एमएलसी डिक्लेयर कर रहे थे, एमएलसी डिक्लेयर करने के दौरान जो है ना पुलिस वो हमें बार बार डॉक्टर को इंटरप्ट करते रहे और उनको डिक्टेट कराने की कोशिश करते रहे। देखिए पेशेंट की सर्विसेज हम मुअत्तल नहीं करना चाहते थे, इसलिए कल हमने सिर्फ 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक की और मुतालबा हमारा था कि फिल फॉर जो ऑफिसर्स पुलिस के ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करें। डीपीओ मलिक तारिक महमूद ने वाकये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इनका कहना था कि पुलिस मेरिट की बुनियाद पर शफाफ इकदामात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त। फैसलाबाद हाजीआबाद की जामे मस्जिद अनवर मोहम्मदी में शरपसंदाना फ़ेल के खिलाफ अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तमाम मुकादमे फ़िक्र के शरीक उलमा और मशाइख कुरान पाक की बेहुरमती के पुरजोर मजम्मत की। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में इलामा सैयद हसन मुश्तबा तिरमजी, मुफ्ती हसनैन गिलानी, पीर सैयद एजाज हुसैन अल हसनी, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शामिल थे। उनके अलावा मुफ्ती मोहम्मद हबीबुर रहमान शामी, मोहम्मद काशिफ नियाज, मोहम्मद आसिफ बशीर, मोहम्मद रहमत रजा कादरी, कादरी मोहम्मद बिलाल हुसैनी, अहमद मुश्तबा और मोहम्मद समर तिरमजी भी शरीक हुए। इस मौका पर इलामा सैयद हसन मुश्तबी का कहना था कि कुरान पाक इल्हामी किताब है और मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता हयात है। टोबा टेक्सिंग में अंजुमन बहबूद मरीज़ा का नई डायलिसिस मशीन्स खरीदने का फैसला। नई डायलिसिस की 3 मशीनें खरीद कर DHQ अस्पताल इंतजामिया को दी जाएंगी। अंजुमन महबूद मरीज़ा का इजलास DHQ अस्पताल में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन मियाँ अब्दुल सत्तार ने की। इस मौका पर मियाँ मजहर चौधरी नईम, मियाँ नसीर अहमद, मियाँ अकरम, मियाँ मजहर चौधरी नईम की वालदा के इसारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। ज़वाल पजीर हॉकी जिम्मेदार कौन? 4 मरतबा का हॉकी चैंपियन पाकिस्तान हॉकी रैंकिंग में 16वें नंबर पर। गोजरा में हॉकी खिलाड़ियों की क्या खदशात हैं, बता रहे हैं हाफिज फरहान अली इस रिपोर्ट में। नेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में मौजूद हूँ। 110 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी को फराहम करने वाला ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आज भी पहले दिन की तरह आबाद है। पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए कोशिश है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी और कोचेज जो हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से किस कदर तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं, आइए आज आपको इस चीज़ें सारी दिखाते हैं। दुनिया हॉकी में हॉकी मशीन्स के नाम से मशहूर पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों ने दुनिया को कई साल अपनी कारकर्दगी से नाकों चने चबवाए। 4 मरतबा वर्ल्ड हॉकी चैंपियन, 3 बार ओलंपिक गेम्स का चैंपियन, 8 बार एशियन गेम्स का चैंपियन और 3 बार एशिया कप का फातेह पाकिस्तान आलमी दर्जा बंदी में 16वें नंबर पर आ गया। खिलाड़ियों और कोचेज ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हॉकी टूर्नामेंट्स का ना होना बड़ी वजह करार दे दिया। पाकिस्तान का अगर पास में देखा जाए हॉकी में स्पेशली जितनी भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट है। 4 टाइम हम हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 3 दफ़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान हॉकी टीम ने। इसके अलावा भी दीगर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हॉकी खिलाड़ियों को नौकरी से निकाल दिया। अपने और घर वालों के पेट पालने के लाले पड़ गए। हुकूमती तवज्जो न होने से ग्रास रूट लेवल पर भी खिलाड़ियों का रुझान कम होने लगा। नौजवान खिलाड़ियों ने या तो हॉकी छोड़ दी या दीगर ममालिक की जानिब से हॉकी खेलने को तरजीह देने लगे। हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, तो जिस तरह से एक कौमी खेल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है कि है ना, उसको क्रिकेट की तरह जैसे अब हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट के हर जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा अगर हॉकी में हो तो हॉकी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ज़वाल होते हैं कि हॉकी को अगर उरूज बख्शना है तो इन नौजवान खिलाड़ियों को इनके मुस्तकबिल के महफूज होने की जमानत देनी होगी, फिर ही ये ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर पाकिस्तान हॉकी के
ڈوبے ہوئے نام کو دوبارہ سے عروج بخشنے کے قابل ہو سکیں گے۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔ سپیریئر کالج کے طلباء کا لال پور میوزیم کا مطالعاتی دورہ، طلباء کو تاریخ و ثقافت سے آگاہی فراہم کی گئی۔ سپیریئر کالج فیصل آباد کے طلباء نے لال پور میوزیم کا مطالعاتی دورہ کیا۔ طلباء کو تاریخ اور ثقافت سے آگاہی فراہم کی گئی۔ طلباء نے میوزیم میں پڑے نوارات میں خصوصی دلچسپی لی۔ ریجنل ڈائریکٹر چودھری محمد یوسف کا کہنا تھا کہ طلباء کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا عملی طور پر دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ کتابی نالج کو پریکٹیکل نالج میں کنورٹ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ابھی بتایا کہ بچوں نے پہلے یہ چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن جب کہتے ہیں نا سینگ از دا بلیونگ، اب جب اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے تو ٹیکسٹائل کی ابتدا کیسے ہوئی، فیصل آباد ایک ہسٹوریکل سٹی بھی ہے تو وہ کون سی مشہور شخصیات تھیں جنہوں نے ہسٹری رقم کی یہاں پر۔ ریجنل ڈائریکٹر چودھری محمد یوسف کا مزید کہنا تھا کہ طلباء کا سال میں 1-2 بار لال پور میوزیم کا وزٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ طلباء کتابوں میں پڑھی ہوئی چیزیں دیکھنے کے بعد زیادہ اچھے سے ذہن نشین کرتے ہیں۔ طلباء نے کہا کہ لال پور میوزیم میں تاریخ سے متعلق بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ ہسٹوریکل امپورٹنس کی جو بھی چیزیں ہیں اساتذہ نے بھی انہیں گائیڈ کیا ہے، یہاں پہ میوزیم میں موجود جو گائیڈز ہیں وہ بھی انہیں چیزوں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور عملی طور پر سکھانے کے لیے لال پور میوزیم ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خالدہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔